fine and stay safe at your home and doing well with your online studies. So here is the new chapter of your physics, which is the human eye and the colorful world. In the previous chapter we covered the topic like reflection through the mirrors, refraction through the lenses. So in this chapter we study about the human eye and the colorful world. Basically we divide this chapter into also two parts. In the previous chapter light is also divided into two parts. First part is the reflection part and the second part is the refraction part. So this chapter also I divide it into two parts. So in the first part we cover about the human eye. So what are the structure of the human eye, various parts and function of the human eye, various defects in case of the human eye. Then the second part is the colorful world. Various colorful phenomena happens around us. You know also that rainbow formation, various questions in our mind, that is why sky is blue, sunset, sunrise. So these are the various phenomena all around us. So we have to explain these phenomena also in this chapter. So first we start with the human eye. So what is the main importance of the human eye? Without eye, I think the world is nothing to us. Eye is the most sensitive and delicate part of our body. So आई ऐसे देखने को तो हमें कुछ नहीं लगता है कि आई के अंदर क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता चलता, बस हमें अपने दोनों आंखें दिखाई देती है. सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई एंड द वेरियस पार्ट्स in our eye. Okay, so the different parts in case of the human eye. First one is the cornea, then the second one iris, then pupil, ciliary muscles, eyelids, retina and optic nerve. Okay, so human eye is basically works on the refraction phenomenon. Okay, human eye is works on the refraction phenomenon because here is also a lens which is a convex lens, which is a natural lens, not a man-made lens. This is a natural lens through which the light can refract and we see the things. So there are the various parts in case of the human eye. So one by one we discuss about the parts by the help of a diagram of a human eye. So here is the basic diagram of the human eye. So here are the basic parts of the human eye. So one by one we discuss about the parts. The first part, which is the outer part of the human eye. जो हम लोग रोज ये वाला आउटर पार्ट, जो बल्जिंग पार्ट हम लोग खुद देख पाते हैं, वो आउटर पार्ट को बोला जाता है दैट इज कोर्निया. ओके, दिस आउटर पार्ट इज नोन एज cornea, which is bulging in the outward direction. When the light comes from an object, then the light enters through the cornea. Okay, so after the cornea, behind the cornea, here is a iris. These two are your iris. So what is your iris? Iris is a flat ring shaped and color membrane. That means iris आपका कौन सा पार्ट हो जाता है? आपके आंखों में जो ये सर्कल टाइप का ऐसे बना हुआ है बीच में, ओके, बीच में एक सर्कल टाइप का बना हुआ है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं आइरिस, विच इज ए रिंग शेप और एक कलर. ओके, क्योंकि आइरिस सबके केस में सेम कलर नहीं होता. हमारे केस में ब्लैक कलर है, मतलब किसके केस में ब्राउन भी हो सकता है, किसके केस में ब्लू कलर भी होता है. सो आइरिस के डिफरेंट कलर्स होते हैं depending upon the color pigments on the iris. Okay, different eyes में iris के कलर different होते हैं, क्योंकि जो कलर पिगमेंट्स आइरिस के अंदर होते हैं वो किस कलर के लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सबके केस में डिफरेंट होता है. अब देखो यहाँ से आइरिस से क्या होता है, आपके आइदर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और ऑब्जर्व होते हैं कुछ लाइट. तो इस केस में जब एक रे ऑफ लाइट आते हैं, वी नो दैट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. बहुत सारे लाइट्स के कॉम्बिनेशन उसमें होते हैं. सो हमें पता नहीं होता है कि हमारे आंखों के अंदर कौन से
लाइट पिगमेंट्स है, कौन से कलर पिगमेंट्स है जो कि किस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे या किस लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा जिस लाइट को हम लोग मतलब जिस लाइट को वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं उसी टाइप का आइरिस का कलर दिखाई देता है। किसी किसी का ब्लू कलर का लाइट का रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वही कलर का लाइट दिखाई देता है। तो किसी के कलर पिगमेंट्स वो लोग ब्लू कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसी के कलर पिगमेंट्स ब्राउन कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आपके आइरिस का कलर डिपेंड करता है। सो दीज टू आर रिप्रेजेंटेड बाय द आइरिस। ओके, एंड देयर इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द टू आइरिस। ओके, जो दो आइरिस यहाँ पर दिखाया गया है, ये दो आइरिस ऐसे सीधे टाइप के नहीं है, ये रिंग शेप का ही है जिसको इस तरीके से फिगर में दिखाया गया है। सो ये रिंग शेप का आइरिस के बीच में एक छोटा सा और रिंग है, ठीक है। उस छोटे से रिंग को क्या बोला जाता है? दैट इज ए प्यूपिल। ओके, प्यूपिल इज ए होल इन बिटवीन द आइरिस। हमें जो दिखाई देता है कि आइरिस के बीच में एक ब्लैक कलर का छोटा सा राउंड शेप का होता है, बट एक्चुअली में वो ब्लैक कलर का कुछ ऐसे पार्ट नहीं होता है, इट इज ए होल पार्ट। मतलब वो एक होल होता है जिसके थ्रू हमारा लाइट एंटर करता है एंड लेंस पे जाकर गिरता है। सो प्यूपिल के थ्रू ही हमारा लाइट जो है वो एंटर कर रहा है। सो द लाइट विल एंटर फ्रॉम द प्यूपिल एंड इंसिडेंट एट द आई लेंस। दिस वन इज द आई लेंस and this is the pupil. One more feature in case of the iris and pupil that pupil का साइज कभी छोटा हो जाता है और pupil का साइज कभी बड़ा भी हो सकता है। It depends on the iris. So iris का एक मेन फंक्शन यहाँ पर काम करता है कि वो क्या फंक्शन करता है। समटाइम्स आप लोग देखे होंगे कि कभी एक ब्राइट लाइट रहता है, कभी डिम लाइट हो जाता है। आप लोग खुद मार्क करना कि ब्राइट लाइट के केस में, इन केस ऑफ द ब्राइट लाइट, योर प्यूपिल साइज इज स्मॉल, द आइरिस contracts the size of the pupil because it allows the less number of light rays to enter through the pupil. क्यों लेस नंबर ऑफ लाइट एंटर क्यों करेगा? क्योंकि लाइट के अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स अगर ज्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जिस वजह से वहां पर क्या करता है आइरिस उस साइज को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करते हैं हमारे प्यूपिल के थ्रू। एंड व्हाट अबाउट इन केस ऑफ द डार्क लाइट? इन केस ऑफ द डार्क लाइट योर प्यूपिल साइज मस्ट बी लार्जर. Why? Because a greater amount of light rays are entered through the pupil. Why? Because हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम लोग डीम लाइट के केस में जाते हैं, डीम लाइट के केस में देखने के लिए हमें ज्यादा रेज ऑफ लाइट एंटर करना चाहिए इन केस ऑफ मतलब थ्रू दी प्यूपिल। प्यूपिल में ज्यादा रेज ऑफ लाइट एंटर करना चाहिए, तो ज्यादा रेज ऑफ लाइट एंटर करने के लिए हमारा प्यूपिल का साइज भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए डीम लाइट में प्यूपिल का साइज को आइरिस क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। एंड इन केस ऑफ द ब्राइट लाइट द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द साइज ऑफ द प्यूपिल. सो प्यूपिल साइज इज नॉट फिक्स. प्यूपिल का साइज हमेशा छोटा बड़ा होते रहता है. लाइक योर विंडो का ले लो ना, मतलब ये एक विंडो की तरह ही काम करता है. विंडो स्क्रीन की तरह कैसे काम करता है? जैसे कि आपको ज्यादा धूप लग रहा है, ज्यादा लाइट आ रहा है, तो आप लोग विंडो का स्क्रीन बंद कर दो. अगर रात का टाइम है, आप लोग को लाइट चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, विंडो का स्क्रीन खोल देते हो. ठीक है, तो ये एक विंडो की स्क्रीन की तरह ही हमारा काम करता है. आप लोग भी खुद ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. कैसे करोगे कि आप लोग एक चले जाओ, एक ब्राइट लाइट को, एक बल्ब को क्या करो, बहुत टाइम तक देखते रहो. बहुत टाइम तक जब देखते रहोगे तो उस केस में क्या देखोगे कि आपका प्यूपिल का साइज धीरे धीरे छोटा होते जाएगा. प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा और तुरंत ही क्या करो, बल्ब को बंद कर दो और ऐसे ही नॉर्मली जाके मिरर में अपने प्यूपिल को साइज को देखो, वो धीरे धीरे छोटा से बड़ा होते हुए जाएगा. आप लोग खुद भी ये चीज कर सकते हो. So this one is the basic concept about the iris and the pupil. Then the next thing is the aqueous humor. Here is a watery type liquid in between the eyelids and the cornea. Okay, in between the eyelids and the cornea there is a watery type substance which is known as aqueous humor. So मैं
maximum refraction always one question may be in our mind that refraction यहाँ पर कहाँ पर होते हैं. देखो refraction eye lens के through भी होते हैं, but maximum refraction takes place in case of the cornea. Why? Because when the rays of light come, okay, when the rays of light come, it is a air medium. जो आपके रेज ऑफ लाइट आते रहते हैं ये होता है आपका एयर मीडियम. तो एयर मीडियम से जब यहाँ तक आया, कॉर्निया इज ऑल्सो ए कन्वेक्स लाइक शेप. ओके, कॉर्निया का भी जो शेप होता है वो कन्वेक्स शेप ही होता है. सो ये जब एयर से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, एयर से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, यहाँ पर हो गया आपका वाटर मीडियम. ओके, हमने पहले ही कहा वाटरी टाइप का सब्सटेंस रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. So when the light travels from the air medium to the water medium, light refract. Okay, यहाँ पर क्या कर जाता है, लाइट आपका रिफ्रैक्ट करता है, बट फाइनल रिफ्रैक्शन आपके आई लेंस के थ्रू ही होता है. बट द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू दी कॉर्निया. कभी कभी ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं कि आपके मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ पर होते हैं. सो द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू दी कॉर्निया एंड द फाइनल रिफ्रैक्शन थ्रू दी आई लेंस. अब देखो आई लेंस के बारे में अगर बात करें, आई लेंस ऑल्सो ए फ्लेक्सिबल. आई लेंस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल लाइक मटेरियल, फ्लेक्सिबल और जेली मटेरियल विच इज होल्डेड बाय द ciliary muscles or which is suspended by the ciliary muscles through the suspensory ligaments. So this one is your eye lens like a convex lens, because convex lens का भी शेप कैसा होता है, इस तरीके का होता है. So it is like a convex lens and these convex lens or this eye lens are suspended with the ciliary muscles. ये किसके साथ अटैच रहते हैं, ciliary muscles के साथ. ciliary muscles इस eye lens को होल्ड करके रखता है. So these two are this one and this one. These two are ciliary muscles. Okay, and the middle part जो ciliary muscles और आई लेंस को आपका अटैच करता है, इस चीज को, ये इस चीज को बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ऐसे आपके बुक में इसके बारे में नहीं बताया गया है, बट आप लोग जान लो दैट आई लेंस और सिलियरी मसल्स के बीच में एक चीज अटैच होता है जिसको बोला जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स. सो सस्पेंसरी लिगामेंट्स का एक पार्ट आपका आई लेंस में अटैच होता है एंड एक पार्ट आपके सिलियरी मसल्स में अटैच रहते हैं. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स, what is the function of the eye lens? Eye lens mainly focus the rays of light which are coming from an object. Okay, then what is the function of the ciliary muscles? Ciliary muscles change the shape of the eye lens. Ciliary muscles क्या काम करते हैं ना, वो आई लेंस के साइज को चेंज करने में हेल्प करता है. Sometimes it contract or reduce the size of the eye lens, or sometimes it expand or elongate the size of the eye lens. इसके केस में भी वही ब्राइट और इसके केस में भी वही और एक हम लोग कंडीशन लेते हैं कि फार ऑब्जेक्ट एंड नियरर ऑब्जेक्ट का केस ले लेते हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम द आई, अगर ऑब्जेक्ट को दूर के केस में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग दूर में रखते हैं तो मोस्टली हमारे किस टाइप के रेज ऑफ लाइट आएंगे, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगे अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है. So when the parallel rays of light comes and enters into our eye and incident into our eye lens, then the eye lens refract the rays of light and it focus in the screen of the eye lens which is retina. Okay, always remember one point that the screen of the eye lens is retina where the image is formed. इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, रेटिना पर फॉर्म होता है. सो रेटिना इज कॉल्ड एट द स्क्रीन ऑफ द आई लेंस. सो आई लेंस कोई भी इमेज को फॉर्म करता है आपके रेटिना पर. तो जब भी कभी दूर में ऑब्जेक्ट रहता है उसको ज्यादा कंप्रेस नहीं होना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, सॉरी रेज ऑफ लाइट को यहाँ पर फोकस करने के लिए. वो इजीली मतलब ये समझ लो कि 10 डिग्री एंगल से वो रिफ्रैक्ट कर गया एंड फोकस हो गया आपके रेटिना पर. अगर ये मान लो कि ऑब्जेक्ट बहुत ही पास में है, मतलब ये आपका लेंस है, ये हो गया आपका कॉर्निया, ऑब्जेक्ट बहुत ही पास में है. सो उस केस में क्या होगा, पहले तो रेज ऑफ लाइट आपके डाइवर्ज होंगे
रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होने के बाद वो रिफ्रैक्ट होंगे। देन ये जब रिफ्रैक्ट होंगे, इसको फोकस करने के लिए आई लेंस को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा उनको रिफ्रैक्ट करने के लिए। उनको ज्यादा एंगल से कैसे रिफ्रैक्ट करके उनको फोकस करना है रेटिना पर, ये काम करेगा आई लेंस यहाँ पर, और इसको हेल्प करता है सिलियरी मसल। सो सिलियरी मसल्स नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड द आई लेंस। सो नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि रेटिना होता है आपका आई का स्क्रीन। द स्क्रीन ऑफ द आई इज नोन एज द रेटिना। एंड द जंक्शन एंड द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं? ऑप्टिक नर्व ये काम करते हैं कि जैसे कि आपका एक इमेज फॉर्म हुआ रेटिना पर। रेटिना पर एक इमेज फॉर्म हो रहा है। दिस इमेज, यहाँ पर देखो रेटिना में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ओके, रेटिना इज मेड अप ऑफ a lot of number of light sensitive cells named as rods and cones. Okay, there are so many light sensitive cells named as rods and cones. Rods and cones के बारे में बाद में पढ़ेंगे. So rods and cones basically it respond the bright light and the dim light and the color of light. जो light intensity को ये सारे जो light sensitive cells होते हैं यहाँ पर रेटिना पर, वो सारे respond करते हैं। तो जब रेस्पॉन्ड करते हैं वही जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वही लाइट सेंसिटिव सेल्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब भी कभी यहाँ पर एक लाइट आके इन सेल्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है, जब भी कभी इन लाइट आके इन सेल्स के ऊपर, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं, when the light falls on the light sensitive cells, the light sensitive cells gets activated, then create a electrical signal, and this signal is carried out by the optic nerve to the brain. Okay, optic nerve क्या करते हैं? वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेके जाते हैं आपके ब्रेन तक, एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल एंड फॉर्म द इमेज। ओके, सो इस केस में हमारा ऑप्टिक नर्व और रेटिना ये क्या करते हैं? आपकी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। So the junction at the junction of the retina and optic nerve and retina का एक जंक्शन में जहाँ पर light sensitive cells नहीं होते, at that spot no vision is there, so that's why this spot is known as the blind spot. In the blind spot no vision is there because no light sensitives are there, so that's why in case of the retina only image is formed in that place in which your light sensitive cells are present. जहाँ पर light sensitive cells present रहते हैं वहीं पर आपके image form होंगे, और वहाँ पर एक blind spot रहता है जहाँ पर कभी भी image form नहीं होता है। So in between the eye lens and the retina there is also a glassy type material, jelly type material, which is known as vitreous humor. Okay, vitreous humor is a transparent type material through which your light can transfer and forms an image on the retina. So basically ये हो गए कॉन्सेप्ट आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि यहाँ पर हो गया कन्वेक्स लेंस। दिस वन इज द कन्वेक्स लेंस, एंड कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज फॉर्म एन इमेज ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस होता है ऐसा कि जहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, जब आपके ऑब्जेक्ट बहुत पास में होते हैं, बट आप लोग हर टाइम ही ऑब्जेक्ट को वर्चुअल एंड इरेक्ट देखते हो। ऐसा नहीं होता कि दूर में ऑब्जेक्ट है तो आप लोग वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं देखते हो, रियल एंड इन्वर्टेड देखते हो। आप लोग कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा देखते हो क्या? नहीं। सो कन्वेक्स लेंस अगर है तो यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होना चाहिए, बट यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है कहाँ पर फॉर्म होता है? आपके रेटिना पर फॉर्म होता है। रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होता है, दिस वन इज रियल एंड इन्वर्टेड। So this image and these signals can be transferred by the optic nerve to the brain, and the brain interprets this image, this real and inverted image, as a virtual and erect image. So we can see the virtual and erect image. This will done by the brain. So these are the basic parts and the basic functions of the parts of the human eye. तो ब्रीफली इस चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तो आप लोग अच्छे से देख लो, इन चीज़ों के बारे में और पढ़ लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखते हैं और इसके फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं।